Hi, I'm Dr. Debashish and I'm starting both Instagram as well as Facebook Live on AVN, avascular necrosis पे ये आज का ये टॉपिक है. So I'm going to add with me Dr. Tushar Gupta. So let me add him. आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ये है एवियन के ऊपर. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है इसके ऊपर. एवियन होता क्या है, एवियन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए. आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड डॉक्टर तुषार इज ऑल्सो लाइव. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इंस्टाग्राम. So a lot of people are joining. So AVN एक बहुत ही significant और major health issue है आज के टाइम पर, and lot of people are actually concerned कि कैसे उसके बारे में ज़्यादा जाने और कैसे उसकी problems को solve करें. So let me add Dr. Tushar and I'll begin with it. Hi Dr. Tushar, am I audible? Hi, sir. Am I audible? Yes, you are audible. So Are we live on Facebook as well? Yes, Facebook, I am not sure how to add you. So you can just give me a request, I'll add you. Just give me a moment. अच्छा, जिन लोगों को डॉक्टर तुषार के बारे में नहीं पता है, मैं बताना चाहता हूँ कि from AIIMS Rishikesh and he is doing wonderful, marvelous job on AVN, and AVN has penetrated in every part of India as well as world, where a lot of people after COVID are suffering from AVN of hip. Not only hip, a lot of other joints are involved. बहुत सारे दूसरे joints को भी involve कर रहा है AVN. So AVN किस तरह से involve कर रहा है, कैसे involve कर रहा है, सारी चीज़ों को explain करने वाले हैं. Just give us a moment. If you have any questions, किसी को भी कोई AVN से related question है, they can just type on the comment section and I'll take those questions as well. तुषार, I think Facebook पे तुम नहीं आए हो. Sir, I tried, but I don't think so I'm able to get through. Just give me one moment. Let me restart on Facebook again. I'm sending you a request on Facebook. To get a request. Can you try sending me a request, because I'm not able to send you a request? I think इसमें option ही नहीं आ रहा है कैसे ऐड करना है. चलो leave it. I think we should continue with the Instagram thing. Sure, sir, sure. Yeah. I'll just close my Facebook. Tushar, you can introduce yourself. I know you want to add on something on AVN as well. So अपना introduction दे सकते हो. I will make it in Hindi and English as well. Yes, just give me a minute. So, hello everyone. I am Dr. Tushar Gupta.
I am an orthopedic surgeon and I am currently working in AIMS Rishikesh. And I am pursuing my MCH in joint replacement and reconstruction. And we get to see a lot of avian cases, and that is precisely how I and Devashish sir connected that avian is a common topic of interest for both of us. Yes, avian is definitely a common topic for us and जितना जानते हैं avian के बारे में बहुत सारे लोगों के queries हैं and again a lot of people are confused as well. So तुषार Yes, मैं yes. just एक तुम्हें rough idea पूछना चाहता हूँ कि uh, du- during the COVID period and after COVID and COVID से पहले what was your scenario in AIMS before COVID? What sort of how many patients तुम्हें रोज के या महीने के कितने एवियन पेशेंट साल के पेशेंट एवियन मिलते थे और अभी कितने मिलते हैं पोस्ट कोविड? तो पहले सबको ये बता दें, व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट कोविड इज बिकॉज कोविड में बहुत हाई डोज स्टेरॉइड इंटेक मिला है लोगों को, प्राइमरीली बिकॉज की कोई थेरेपी हमारे पास डेफिनेटिव थी नहीं, तो स्टेरॉइड्स वर यूज्ड एज अ रामबाण. एंड देन व्हाट हैज हैपेंड इज स्टेरॉइड इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर एवियन, जिसकी वजह से डेफिनेटली नॉट जस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू अस विद एवियन हैव इंक्रीज्ड, बट ऑल्सो जो एज सेगमेंट था जिसमें एवियन हमारे पास में मेनली प्रेजेंट करता था, वो डे बाय डे हमारा यंगर पॉपुलेशन पे शिफ्ट होता जा रहा है, because a lot of youngsters also had to take a lot of steroids during the times of COVID. And earlier, what used to happen was on a normal OPD day, on a normal joint replacement OPD day, we used to have somewhere around 10% cases of AVL. You know, like out of the complete OPD that we have on any day, 10% cases used to be avian, but now they have increased to somewhere around 40%. So ओके 40% of a case of cases on an average day in the joint replacement OPD are because of avian. तुषार कितने पेशेंट्स तुम्हारे एम्स ऋषिकेश में कितने पेशेंट 10% तो तुम बोल रहे हो कितने पेशेंट यूजुअली तुम लोग देखते हो इन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट ओपीडी So जस्ट usually गिविंग we have OPD of around 500 to 700. So ओके usually we used to see around 50 70 patients. ओके But now दैट्स our patients go up to 150 to 200 on any day, on any joint replacement OPD. So that's a huge number. So Yes, यही चीज absolutely. हाँ, मैं अगर अपने पर्सनल प्राइवेट ओपीडी के बारे में कंपेयर करूं, we used to get a lot of less number of avian patients. Say once in a month to once in 2-3 months, we used to get one patient in our मेरी क्लिनिक पे, ठीक है? And from there, if I compare nowadays OPD, we get around uh, 7 to 10 patients in a week. Okay, so that has gone up significantly high. So number of avian patients definitely yes. The thing you said कि कोविड के ड्यूरेशन में बहुत सारा स्टेरॉइड यूज किया है, तो स्टेरॉइड जिन्होंने हैवी डोज पे यूज किया, दे आर एक्चुअली हाई रिस्क फॉर having a avian in not only hip joint, a lot of other joints like ankle, knee, patella, shoulder. All of these joints are actually involved. Uh, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो जिनको कोविड का कोई भी मतलब सिम्टम नहीं आया एंड नीदर दे हैव बीन डायग्नोस्ड और इफ दे आर डायग्नोस्ड विद मिनिमल डिजीज सबसे कम डिजीज हुआ बट स्टिल दे सफर्ड फ्रॉम एवियन एंड Yes. एंड दैट्स अ मिस्ट्री जो कि बहुत ही कम लोगों को लगता है पता है कि क्यों हुआ था. So that's another aspect which I think कि will be cleared in few years time. I think जैसे जैसे रिसर्च एक्टिविटीज जा रही हैं उतना क्लियर होगा. तुषार मैं एक और सवाल तुमको पूछना चाहता हूँ कि एवियन के जो पेशेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे एम्स में, व्हाट डू यू थिंक किस स्टेज में आते हैं? क्या वो अर्ली डायग्नोसिस वाले आते हैं मोस्टली या कहीं से ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट तुम्हारे पास लैंड ऑन करते हैं? So, मतलब if sir, I because ask you 10 पेशेंट्स तुमने देखे हैं तो 10 में से कितने फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस वाले होते हैं और कितने लोगों का ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका होता है बीइंग ए टर्शियरी सेंटर? out of 10, maybe only a couple of the patients land up with us who are like, a vague hip pain है, एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है एवीएन का जो टर्सरी सेंटर में पहुंचता है, वो है एक वेग पेन के साथ पेशेंट आता है और अपने लोअर बैक को पकड़ के आता है और पता लगता है कि वो 2-3 साल से
the patient has been taking treatment of slip disc, as it is commonly called. तो उसको बताया जाता है एक सेंटर पे कि आपका एमआरआई में एक थोड़ा सा डिग्री ऑफ स्लिप डिस्क है जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट्स को 2-3 साल तक a lot of steroids are given, a lot of steroid injections are given for pain relief in the spine. And actually वो पेशेंट्स हमारे पास आके डायग्नोज होते हैं कि उनको एवीएन है और उनको कभी पता ही नहीं था 2-3 साल से कि उनको एवीएन था. ऐसे केसेस हमारे पास फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस के होते हैं, बट द मेजोरिटी ऑफ आवर केसेस आर डेफिनेटली डायग्नोज्ड एल्सवेयर. दे ऑलरेडी हैव अ एमआरआई इन हैंड व्हेन दे लैंड अप इन आवर ओपीडी. हाँ, सो दैट्स ट्रू. मेनी टाइम की जो डायग्नोसिस होता है वो एक्चुअली एवीएन का डायग्नोसिस बहुत ही डिफिकल्ट होता है पेशेंट्स के लिए. और बैक पेन जो है कि एक बहुत ही कॉमन मिसनोमर है कि बैक पेन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्लिप डिस्क ओनली. सो दैट्स ए आई थिंक रॉन्ग वे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स का डायग्नोसिस नहीं होने का रीज़न भी होता है कि हैवी ओपीडीज में मेनी टाइम डॉक्टर्स फुली एग्जामिन नहीं करते, या बहुत समय नॉन ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स भी बैक पेन को ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसमें कि कॉमन मिसनोमर होता है कि स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट करें. तो मेनी ऑफ द टाइम पेशेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग ट्रीटेड फॉर स्लिप डिस्क एंड दे इवेंचुअली वर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एवीएन. और वाइटल टाइम जो है वो डायग्नोसिस में मिस हो जाता है, डिलेड डायग्नोसिस में, एंड वी एंड अप विद लेट डायग्नोसिस. अगर तुषार तुम्हें ये पूछूं कि कितने पेशेंट अर्ली एवीएन जैसे स्टेज 1 में तुमने डायग्नोसिस किया हो. स्टेज 1 डेफिनेटली एज एवरीवन नोज इज कंप्लीटली ट्रीटेबल विद मेडिकेशन एंड रेस्ट. कितने पेशेंट्स ऐसे वो होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोसिस होते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेज का जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस अगर क्लिनिशियल बहुत एक्सपीरियंस है और एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन है कि पेशेंट को बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको एवीएन हो सकता है, और ऐसा पेशेंट आपके पास में हिप पेन के साथ में अगर हमारे पास किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास प्रेजेंट करता है एक बेसिक एग्जामिनेशन के साथ में और हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन लेके और एक पेशेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसका एमआरआई एडवाइस करके, मुझे लगता है कि काफी सारे पेशेंट में स्टेज 1 पकड़ा जा सकता है. बट हैविंग सेड दैट ऐसा हो नहीं पाता है, और मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स जो स्टेज 1 में हमें मिलते हैं वो जनरली स्टेज 2 और स्टेज 3 दूसरे हिप में लेके चल रहे होते हैं. तो उनको क्योंकि दूसरे हिप में ऑलरेडी स्टेज 2-3 तक अफेक्शन पहुंच चुका होता है, एंड देन दे गेट एमआरआई डन, एंड इंसिडेंटली उनको पता लगता है कि उनका स्टेज 1 भी राइट ऑपोजिट हिप में भी स्टेज 1 डिजीज है. तो ये पेशेंट सबसेट जो होता है ये हमारे पेशेंट्स में हार्डली 15-20% पेशेंट्स होते हैं, और इनको मैं बोलता हूँ सबसे किस्मत वाले पेशेंट्स हैं, बिकॉज इनका ये श्योर होता है कि आपका एक हिप तो हम बचाएंगे 100%. बताएंगे दूसरे हिप 100%. में इट वेरीज फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, बट डेफिनेटली वी विल सेव वन हिप. बट मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ. मुझे लगता है कि जो स्टेज 1 एवीएन है उसका डायग्नोसिस आई थिंक मोस्टली इन ऑर्थोपेडिक फैमिलीज जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन फैमिली मेंबर है, Absolutely. एंड मेडिकोज हु आर वर्स विद एवीएन, जिनके घर में ऑलरेडी एवीएन बहुत सारे देख चुके होते हैं, या किसी पेशेंट का जिसके घर में ऑलरेडी एवीएन होता है, उनका डायग्नोसिस स्टेज 1 पे होने के ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस होते हैं. Absolutely. बट अनफॉर्चुनेटली अदर देन दैट लोगों का एमआरआई को लेके भी ऐसा सिग्निफिकेंट वो है कि लोग का हिंड्रेंस है कि इफ आई हैव पेन फॉर 4-5 days एंड द डॉक्टर इज राइटिंग, डॉक्टर ने एमआरआई लिख दिया है तो पैसे वेस्ट वाली बात बता दी है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि एवीएन का डायग्नोसिस हो जाए, 2-4 पैसे खर्चा ही हो जाए, और ये पता चल जाए कि एवीएन नहीं है ना, वो भी बहुत बहुत ही रिलैक्स करने वाली चीज है दिमाग को. बहुत रिलैक्स. हाँ, बट तो इसके लिए आई थिंक लॉट ऑफ अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अवेयरनेस पेशेंट को ये नीडेड. समझना चाहिए कि हाँ. क्लिनिकल सस्पेशन और आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे जो सस्पेशन था, आपको रिस्क फैक्टर्स थे एवियन के, इसीलिए ही आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको एमआरआई एडवाइस किया होगा. एंड सो डेफिनेटली वो एमआरआई कराना सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. हाँ, तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ 2-4 पेशेंट्स का, कि ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा. कि फर्स्ट एग्जांपल ये है कि एक किसी फैमिली फ्रेंड ने मेरे को दिखाया था. उन्होंने एक पेशेंट को मेरे पास भेजा, एंड मैंने उस पेशेंट को जो है मतलब एग्जामिन करके हिप की रोटेशनल मूवमेंट में काफी पेन देखा, तो मैंने उसको एमआरआई लिख दिया इमीडिएटली, एंड ही हैड अ पेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओनली 3 days. Now this guy actually launched a complaint against मेरे हॉस्पिटल के
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हमारा कॉल सेंटर पे उसने कंप्लेन की डॉक्टर इज वेरी मनी माइंडेड एंड ही हैज एडवाइज्ड MRI on third day of back pain, and this guy unfortunately got diagnosed avian after 3 to 4 months, and this was the person who actually apologized me कि सर आपने सही तो लिखा था बट इट वाज माय फॉल्ट कि मुझे ऐसा लगा, एंड ही एस्केलेटेड all the people in the hospital ki doctor is writing MRI without any reason. And second example is that I had seen a patient in between COVID, and during that COVID, because he had hip pain, I had advised him MRI, and unfortunately, he never got it done. Got a lot of treatment in between, and after 3.5 years, he landed in my OPD again, and he started showing me all the papers कि stage 3 AVN है, इसमें अभी treatment क्या करना है, and unfortunately उसने मुझे अपनी मतलब जितनी प्रिस्क्रिप्शन थी उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे हॉस्पिटल की भी थी जो मैंने ही लिखी थी 3-3.5 साल पहले, एंड ही एक्चुअली मिस दैट प्रिस्क्रिप्शन, एंड बोलता है कि फर्स्ट डॉक्टर ने ना एडवाइस किया था हमारे, बट आई मिस्ड इट। तो मैंने बोला फर्स्ट डॉक्टर भी मैं ही हूँ, तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, मेरी प्रिस्क्रिप्शन ही मुझे दिखा रहे हो, एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस अ लॉट, एंड Yes. दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि गेटिंग एन MRI डन एंड गेटिंग दिस थिंग डायग्नोज कि आपको एवियन नहीं है is actually a thing which you should be hoping to see the MRI. मुझे नहीं लगता कि In MRI fact, करा I के will अगर give you आप one example from my experience also. Like we have a lot of colleagues also who are having, high dose steroids for some or the other indication. चाहे वो SLE हो, चाहे वो कोई skin disease हो, चाहे वो कोई ophthalmological disease हो, चाहे वो respiratory disease हो, जो भी high dose steroid खाने वाले लोग मेरे पास आते हैं, चाहे they are patients or they are healthcare workers, especially more so when they are healthcare workers, I tell them that faintest sign मिलते ही hip pain का आपको MRI करवाना है, and just to be on the safe side, all the people who have consumed really high doses of steroid, let's say more than 20 mg per day for a period of more than 6 months, or a cumulative dose of more than 2 grams, I tell all of them that you get your routine MRI at least for a while, so that आपको एवियन ना हो. That's the best thing because उसका इतनी importance है कि MRI करवाएं और उसमें एवियन ना आए, तो I think the orthopedic surgeon is really happy. The आई patient may थिंक or may not be happy. आई थिंक तुषार ये जो चीज़ है ना, पेशेंट को बोलने की जगह मुझे लगता है कि वी शुड इवन लेट द फिजिशियंस, चेस्ट फिजिशियंस एंड रिमेटोलॉजिस्ट Yes, को भी अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों yes, के पास ही ये पेशेंट्स आते हैं, एंड दे शुड नो दैट कितने ग्राम स्टेरॉइड देने के बाद मुझे पेशेंट को एटलीस्ट एक फ्लैग, रेड फ्लैग दे देना होता है हाथ में कि red भाई flag. तुम अपना MRI करवा लेना, क्योंकि Yes, मेनी टाइम्स इट इज इन अर्ली स्टेज, इट इज डेफिनेटली ट्रीटेबल, एंड yes. स्टेज 1 आई थिंक इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल, एंड मेनी टाइम्स लोग जो है डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। एक मिस्टर पुनीत सवाल पूछ रहे हैं कि उनको ऐड करना है, ही इज सफरिंग फ्रॉम एवियन। आई थिंक पुनीत यू कैन जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन, मैं आपको ऐड कर लूंगा, पहले हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। यू कैन लिसन ऑल द डिस्कशन एंड बिटवीन विल टेक योर कॉल एज वेल। तब तक तुम अपना सवाल टाइप करके आई थिंक पूछ लो, विल बी एबल टू आंसर दैट। डिस्कशन में बहुत सारे आंसर हो जाएंगे बिकॉज ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर दिस इवनिंग। Yes. तुषार, there's a lot of confusion about जैसे diagnosis के लिए है, तो what is the ideal investigation you will advise? क्योंकि many a time patient comes and they tell कि डॉक्टर ने एक्सरे तो नहीं लिखा, MRI क्यों लिख दिया? So which investigation in your center you advise as first investigation before going ahead कि कोई और major investigation मैं कराऊं? सर आई थिंक इसके लिए जो पेशेंट्स हैं और जो और स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जो 4 स्टेजेस एवियन की मिलती हैं उसमें प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड स्टेज को एक्सरे पे आइडेंटिफाई करना इज रियली डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन द हिप इज इन स्टेज 1. एक माइल्ड सा थोड़ा सा स्क्लेरोसिस शायद स्टेज 2 में दिखने लग जाए, बट मोस्टली स्क्लेरोसिस भी उन पेशेंट्स में देखा जाता है जो स्टेज 2 के ब्रिंक पे आ चुके हैं और वो स्टेज 3 में जाने वाले हैं, उससे पहले ही आपको अच्छे खासे एक्सरे चेंजेस दिखेंगे. इसलिए अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एक इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो मैं हमेशा MRI बोलूँ, एंड दैट्स द प्रोटोकॉल दैट यू गेट अ MRI डन सो दैट यू आर श्योर कि या एवियन है या एवियन नहीं है. बट डेफिनेटली
मैं एक्सरे भी अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, because all the investigations when amalgamated together, then only we are able to decide the treatment. But diagnosis के लिए MRI is one investigation that I would really want everyone to do, even as a prophylactic measure when they are at high risk of developing AVN with just a brink of pain. हाँ, सो एक और चीज जब मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट डायग्नोसिस इज एमआरआई एंड देन डेफिनेटली यस फॉर ए लॉट ऑफ प्लानिंग यू मे नीड्स एक्सरेज की जरूरत हो. तुषार, व्हाट इज द रोल ऑफ सिटी स्कैन? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एमआरआई और सिटी, मतलब लोगों को इतना पता नहीं है कि एमआरआई का क्या रोल होता है, सिटी का क्या रोल होता है. तो what is the role of CT scan? Because I get a lot of CT scan reports which are done maybe because कि उस पर्टिकुलर सेंटर में शायद एमआरआई नहीं है तो उन्होंने सिटी करा लिया होता है और सिटी की रिपोर्ट्स पेशेंट अपलोड कर रहे होते हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन अर्ली डायग्नोसिस के लिए सिटी स्कैन का क्या रोल है? Then the practice that we follow and what literature also says a lot of times is कि हमारे यहाँ पे ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट स्टेज 2 में होते हैं और हम उनको कोर डिकम्प्रेशन प्लस बायोलॉजिकल्स ऑफर कर रहे हैं, तो वी जस्ट वांट टू बी श्योर दैट द पेशेंट हैज नॉट स्टार्टेड कोलैप्सिंग ऑलरेडी. उन पेशेंट्स को हम एक सीटी स्कैन कराते हैं टू बी श्योर कि जो ट्रीटमेंट हम ऑफर कर रहे हैं जिस सक्सेस रेट के साथ वो हम पेशेंट को डिलीवर कर पाए. एंड द सेकेंड सेट ऑफ पेशेंट्स जिनको हम सीटी करवाते हैं वो सेट होता है जिसको हम ओसीए ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट के लिए प्लान करते हैं. बाकी probably I am not aware of any other indication कि जिसमें सीटी करवाने से कोई एडेड एडवांटेज मिलेगा इन एवीएन. ठीक है, वैलिड पॉइंट टेकन. बिकॉज आई आल्सो फील कि सिटी स्कैन बोन कोलैप्स को कंफर्म करने के लिए मे बी ऑन ट्रीटमेंट पार्ट की व्हेन यू आर डूइंग प्रिजर्वेशन सर्जरी, मतलब हिप को बचाने की सर्जरी जब कर रहे हो, which type of surgery is more important? Because in late stages like stage 3 and 4 where collapse has already happened, arthritic changes शुरू हो गए, वहाँ पे तो एक्सरे भी मुझे लगता है कि sufficient होता है कि आप आगे क्या ट्रीटमेंट करना है. एंड स्टेज 1 डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू बी एनी, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हेल्प इन स्टेज 1, नहीं मिलेगा. तो स्टेज 2 के ए और बी में हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है कि हम किस तरह का सर्जरी करने वाले हैं या क्या करने से उसे बचा सकते हैं. अच्छा तुषार, व्हाट इज योर प्रोबेबल रेट कि अगर मैं पूछूं कि स्टेज 1 डायग्नोसिस हुआ है तो व्हाट इज द चांसेस दैट पेशेंट माइट गेट वेल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एनी सर्जरीज? 100%. स्टेज 1 इज अ ब्लेसिंग. Yes, अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको एवीएन देना है कौन से स्टेज का दे, तो मैं बोलूंगा 1 का दे दो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे. कर दे दो, ठीक है. that's take home message for everyone that I think stage 1 AVN can be completely prevented with medication. 100% it is savable thing. And many a time patients को पता नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता, तो लोग क्या होता है कि उनका एक दिमाग में रह जाता है कि हाँ ये सवाल जो है मुझे मतलब ट्रीटेबल है भी कि नहीं है. Now going up to stage 2 A and B. So stage 2A के बारे में थोड़ा सा मैं तुमसे पूछूंगा कि what is the treatment options you provide, because a lot of people are confused about stage 2A. And so what normally we follow and what again I would say a lot of research also supports is कि स्टेज 2A में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितना भी एरिया अफेक्टेड है वो हिप के कौन से पोर्शन में अफेक्टेड है. अगर वो बिल्कुल मीडियल साइड पे है, अगर बिल्कुल नॉन वेट बेयरिंग एरिया में है, अगर उसका एरिया ऑफ अफेक्शन बहुत छोटा है विच इज वेरी रेयर, बट अगर वो बहुत छोटे स्टेज पे ही स्टेज 2 में पकड़ा जाता है देन रेयरली आई वुड से कि हाँ हम मेडिसिन या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे नॉन वेट बेयरिंग प्रोटोकॉल्स पे पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं. But once it crosses that, which is in the scenario in majority of the 2A cases also that we get, that patient is already having a significant area of involvement. Weight bearing dome तक पहुंचने वाला होता है लीजन किसी भी तरह से. And in such cases, generally we advise that the patient undergoes a core decompression. And these days, we strongly advocate that biological augmentation is good. It is definitely good. All the prospective studies that are coming up, be it short-term studies, be it longer-term studies, they do say that biologicals do have a role. अच्छा, व्हाट इज मुझे लगता है बायोलॉजिकल या ऑर्थोबायोलॉजिकल जब वर्ड यूज करते हैं पेशेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता, तो इनको थोड़ा सा सिंपलीफाइड वे में अगर बोलते तो क्या बोलते? सिंपलीफाइड वे में मतलब बेसिकली ये फॉर ऑल द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हम जो ड्रिल होल बनाकर
आपके एवीएन के जो वहां पे दबाव बन रहा है, सूजन बन रही है, उसको जो अब हम कम करते हैं ड्रिल होल्स बना के, तो साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो छेद बनाए, जो होल्स बनाए, उसमें हम बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करें किसी तरह से। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम पहले रिवर्स बोन ग्राफ्टिंग कर देते थे, कि जो बाहर की अच्छी बोन है उसको मुड़ के अंदर की तरफ डाल देते हैं, या लोकल ग्राफ्टिंग करते हैं, हम ट्रोकेंट्रिक ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अब साथ साथ हमने ये भी करना शुरू किया है कि बोन ग्राफ्ट को हम ऑगमेंट करते हैं, कोई ना कोई ऐसे न्यूट्रिशन फैक्टर्स डाल के जो उस बोन के अपटेक को और मल्टीप्लिकेशन को एड करे। और उस जैसे सिनारियों में, जैसे जैसे कि वो बीएमपीज हो गए, बीमैक्स हो गए, या फिर स्टेम सेल थेरेपी हो गई, तो हम कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल ऑगमेंटेशन सपोर्ट करते हैं कोर डिकम्प्रेशन के साथ साथ। वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द हिप को बढ़ाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी ऑल वांट एज सर्जन एंड एज द पेशेंट ऑल्सो। सो डेफिनेटली यस, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि इवन कोर डिकम्प्रेशन डन विथ some additive, the chances of success goes up high. So in my personal वो कि BMP, bone morphogenetic protein, has actually changed the complete scenario with bone grafts inside the holes. So hole में भर देते हैं हम लोग उससे, टेक्निकली सेइंग ऑलमोस्ट 100% रिकवरी रेट मेरे पेशेंट्स में जिनमें मैंने किया है उनमें देख रहा हूँ मैं, स्टेज 2A में भी। अच्छा, मैं तुषार एक सवाल तुम्हें और पूछता हूँ कि व्हाट इज योर success rate now at stage 2A? What is your success rate? Like one is completely 100%. So 2A में क्या क्या success rate patients को दोगे? Sir, in my opinion and in the teachings that I have always got, it is always a holistic approach. मतलब अगर हम पेशेंट को ये बताएं, आज हमने आपका कोर डिकम्प्रेशन कर दिया और बीएमपी डाल दिया, अब आप नेक्स्ट डे से जाके कुछ भी करो, तो वो प्रोबेबली थोड़ा डाइसी हो जाता है वहां पे सिचुएशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमने अंदर जाके जादू कर दिया और अब नेक्स्ट डे से पेशेंट कैन गो बैक टू नॉर्मलसी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट ऑल्सो टू बी एजुकेटेड कि हमने जो एफर्ट्स किए हैं वो बोन फॉर्मेशन को एड करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स हैं, बट पेशेंट की साइड से प्रिकॉशंस लेना, पेशेंट को ध्यान रखना टिल द टाइम दैट बोन फॉर्मेशन एक्चुअली हैपेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे केसेस में 2A के स्टेज में जो फेलियर्स होते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग द पेशेंट, बट जनरली वो उस सबसेट में होते हैं जो सबसेट कंप्लायंट नहीं होता है, या जिनकी अपनी मजबूरियां होती हैं कि मैं सर ऑपरेशन तो करवा लूंगा लेकिन मैं ऑपरेशन के बाद प्रिकॉशंस नहीं ले पाऊंगा। उस सबसेट में हमने खासकर देखा कि फेलियर्स होते हैं, बट इनवेरिएबली 2A में दिस ट्रीटमेंट मोडालिटी वर्क्स वेरी वेल। So क्या precautions तुम बताते हो? जैसे मैं भी बड़ी सारी चीजें बताता हूँ, मुझे लगता है दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज कि stage 2A, if surgery is done, core decompression done, then you have to take a lot of precautions as well. So what is the first foremost important precaution अगर बोलोगे तो एक single precaution, what is more important? तो फोरमोस्ट अगर मैं एक प्रिकॉशन इन इंडियन सिनेरियो बोलूंगा तो ये होगा कि स्पॉट मत कर, बिकॉज स्पॉट, अगर पेशेंट ने अभी सर्जरी कराया और पेशेंट इमिडिएटली जाके अगर स्पॉट कर रहा है, इंडियन टॉयलेट यूज कर रहा है, या स्क्वाट करके कोई भी एक्टिविटी घर में करने की कोशिश कर रहा है, दैट इंक्रीजेस हिप को लोड करने वाली जो भी चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी है, एंड स्क्वाटिंग में द हिप लोड गोज मल्टीप्लिकेटिवली अपवर्ड, हाँ एंड दैट द पेशेंट हैज टू अंडरस्टैंड। अगर एक चीज कोई मुझसे पूछना है तो स्क्वाट बिल्कुल नहीं करना। हाँ, सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे प्रोटोकॉल में ये है कि आई डोंट लेट द पेशेंट पुट वेट ऑन द साइड, ठीक है? यस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स गेटिंग ये कोर डिकम्प्रेशन कराने के लिए आते हैं, माइंडसेट ये होता है कि इट इज वेरी स्मॉल सर्जरी एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम एंड नेक्स्ट डे से वो लोग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कंप्लीट बेड रेस्ट टिल द बोन इज ग्रोन, ठीक है? डेफिनेटली। जैसे कि एक फ्रैक्चर में होता है कि आपने फ्रैक्चर को ऑपरेट किया है, टेक 6 weeks to 3 months to 6 months मैंने टाइम की ज्वाइन होने में, तो वो टाइम जो है उन्हें देने की जरूरत है हीलिंग के लिए। जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेलियर कोर डिकम्प्रेशन के होते हैं वो नहीं होते हैं। इसी बात में मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज टाइम की बात बताता हूँ कि एवियन जब आता था तो एवियन की ट्रीटमेंट के लिए जब सर्जरी हो रही होती है, कोर डिकम्प्रेशन हो रही होती थी, एक तो पहली बात है कि वो स्टेज 2 में
से ज़्यादा मुझे लगता है स्टेज 3 में कर रहे होते थे हम, स्टेज 2B और 3 में कर रहे थे, क्योंकि तब पेशेंट मुझे लगता है कि लेट प्रेजेंटेशन ही करता था सब हमेशा। सो एंड इवन कभी कभी प्लानिंग वाले सरकारी हॉस्पिटल में प्लानिंग में ही मुझे लगता है कि महीनों लग जाते थे और सर्जरी जो है डिले हो जाती थी। तो उनमें क्या होता था कि इट वाज नोन दैट दिस इज कोर डिकम्प्रेशन व्हिच इज गोइंग टू फेल, इट माइट गिव हिम सम टाइम, थोड़ा दिन मिल जाएंगे तो फेल होने वाली है। और सबसे जूनियर मोस्ट सर्जन को भेजा जाता था, जिसको ये बोलते थे कि तू जाके कोर डिकम्प्रेशन 10 से 15 मिनट में करके आ जा, ठीक है। एंड इट वाज ए लॉस्ट बैटल। मुझे लगता है कि सब लोग ये सोचते थे कि ये हारी हुई लड़ाई हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, और सबसे जूनियर मोस्ट को इसलिए दे क्योंकि फेल होगा भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टू अ पॉइंट आज मुझे लगता है कि अगर मैं कोर डिकम्प्रेशन करने जाता हूँ और अच्छे से कर रहा होता हूँ तो आई टेक एटलीस्ट 2.5 आवर टू डिकम्प्रेस, पुट बोन ग्राफ्ट एडिटिव डालने में कि मैं एक साइड में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मुझे लगता है क्रूशियल सर्जरी वेयर यू आर गोइंग फॉर विनिंग द बैटल रेदर देन कीपिंग दिस माइंडसेट कि तुम हारने ही जा रहे हो और कुछ भी करके आ जाओ, हारना तो है ही। मुझे लगता है वो माइंडसेट भी सर्जन्स का चेंज होना चाहिए कि कोर डिकम्प्रेशन done very well with additives can give even 100% results, and this is point of just changing the mindset कि हाँ ये जीता जा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने कोर डिकम्प्रेशन कराया और उनके सर्जन्स ने उनको बोला कि यू कैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ठीक है, एंड बेड रेस्ट लिया ही नहीं है बिल्कुल भी, एंड दैट फेल्ड। सो अंडरस्टैंडिंग दैट माइंडसेट दैट हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो शायद फायदे वाला होगा ही नहीं, मैं हारने वाला हूँ, और हारने के एग्जाम्पल से पेशेंट को बेड रेस्ट ना दूं, मुझे लगता है कि दैट्स नॉट ए परफेक्ट थिंग। इट शुड बी इवन कि हमें उससे परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए। अच्छा तुषार, नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेज 2A एंड स्टेज 2B ऑफ एवीएन? द डिफरेंस वुड बी कि पेशेंट एमआरआई करा के लाया और एक्सरे करा के लाया, पेशेंट को पहले से पता होता है कि मैं स्टेज 2B में हूँ। हमारे पास पेशेंट इनवेरिएबली जो आते हैं वो आकर बताते हैं सर ये रही मेरी रिपोर्ट, मैं स्टेज 2B में हूँ, बिकॉज डेफिनेटली वी आर ए रेफरेंस सेंटर एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस आल्सो इन दिल्ली आर इक्विवेलेंट टू अ रेफरेंस सेंटर, क्योंकि वहां पे पेशेंट सब जगह जाने के बाद में आता है विद द माइंडसेट दैट दिस डॉक्टर इज गोइंग टू गिव मी द राइट ट्रीटमेंट एंड दिस इज इट फॉर मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट वो पेशेंट एजुकेशन तब तक डायग्नोसिस के बारे में हुई होती है, बिकॉज पेशेंट लेके आता है रिपोर्ट, इट्स जस्ट आवर जॉब दैट वी एग्जामिन द पेशेंट, वी वेरीफाई द फाइंडिंग कि हाँ एक्सरे में क्या है, एमआरआई में क्या है, एंड व्हाई आर वी लेबलिंग दिस पेशेंट एज 2A और 2B, क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस अकॉर्डिंगली चले। द चांसेस जैसे हम अभी तक ऑलमोस्ट 100% सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो वो ड्रॉप डाउन होता है 2B पे आते ही, स्पेशली 2B पे आते ही विद द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजिंग अलॉट एंड वेट बियरिंग तक अगर आ गया है, टैबुलर मार्जिन तक पहुंच रहा है, तो उसके साथ साथ प्रोग्नोसिस और पुअर होता जाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका कोर डिकम्प्रेशन अब एक अलग तरीके से करा जाना चाहिए, एक जॉइंट प्रेजर्वेशन सर्जन के द्वारा किया जाना हाँ चाहिए, हाँ। बिकॉज अगर वो आपका कोर डिकम्प्रेशन करेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंटली हायर प्रोबेबिलिटी दैट आपके सही एरियाज को डिकम्प्रेस कर पाएंगे और आपको सक्सेस का चांस अच्छा मिलेगा। अच्छा मिल सकता है। तो yes again stage 2B has given wonderful results until यस unless it has been done meticulously, बहुत अच्छे से किया गया है। यस अच्छा तुषार, मेरे को एक और चीज़ तुमसे पूछनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एम्स ऋषिकेश में देखी और कहीं पे नहीं थी। वन ऑफ द ट्रीटमेंट वाज हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। आई थिंक यस हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, तो उसके बारे में अगर तुम थोड़ा सा बोलो, क्योंकि आई थिंक नाउ इट इज ए लॉट ऑफ सेंटर्स आर कमिंग अप विद हाइपरबारिक ऑक्सीजन चेम्बर्स जहाँ पे कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सर, तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक पहले से डिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट है, हम्म बट उसके ऊपर बहुत लिमिटेड स्टडीज हैं, और इंडिया में जो फर्स्ट एवर स्टडी है वो एम्स ऋषिकेश में करेंटली इट इज बीइंग कंडक्टेड एंड वी आर इवैल्यूएटिंग द आउटकम्स। हम्म एंड व्हाट वी हैव सीन बाय फार इज, हमें ऐसा लगता है कि एचबीओटी ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वो कभी पेशेंट्स को वाइडली ऑफर करी ही नहीं गई, जिससे उसका आउटकम अच्छे से पता लगता। राइट नाउ वी आर डूइंग द लार्जेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और हम उसके आउटकम्स को असेस कर रहे हैं। व्हाट ट्रेंड सजेस्ट बाय फार इज दैट
it works well for stage 1, stage 2A. Stage 2B, it comes down to selection of patients, that what are the patients that we are selecting. ये एक बात बहुत क्लियर है कि पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि आपका एक सिग्निफिकेंट एरिया कोलैप्स अगर हो गया है, आप स्टेज 3-4 में 3 में पहुंच गए हो, 4 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, स्टेज 3 में अगर आप पहुंच गए हो, आपका एरिया कोलैप्स हो गया है, तो दुनिया की कोई ताकत उस कोलैप्स एरिया को वापस उठा नहीं सकती। तो ये चीज पहले लोग अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो क्योंकि हम स्टेज 1 और 2 को ठीक कर चुके हैं, तो स्टेज 3 में आकर बोलते हैं कि हमें ऑपरेट नहीं कराना, हमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी आप दे दो, तो हम उनको ऑफर नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पेशेंट सिलेक्शन ही गलत रखेंगे तो हमें आउटकम तो गलत ही मिलेंगे। तो हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 में वी हैव हैड गुड आउटकम्स विद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, बट हैविंग सेड दैट, इट ऑल्सो कम्स डाउन टू कि व्हाट प्रिकॉशंस इज द पेशेंट टेकिंग। हमारे जो फेलियर्स हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के, अगेन वी हैव फाउंड द सेम सबसेट वेयर द पेशेंट बिलीव कि हमने ये काम कर लिया, अब हम ठीक हो गए, बट ऐसा नहीं होता। नॉन वेट बियरिंग, नॉट स्क्वाटिंग, नॉट डूइंग हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज, हिप को ऑफलोड करना बहुत जरूरी है। अगर हिप को ऑफलोड नहीं किया तो मुझे लगता है कि जितनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज है वो सारी ही फेल कर जाएंगी। डेफिनेटली यस। तो हाइपरबोरिक ऑक्सीजन भी अगेन बहुत हेल्पफुल है इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2A। सो लोगों को वो जानना जरूरी है, कोलैप्स से पहले कर सकते हैं, बट अगेन मैं दोबारा से सवाल को तो रिफ्रेम कर देता हूँ। स्टेज 2B operated patient with properly done core decompression with additives, can he be a candidate for hyperbaric oxygen therapy? So, sir, we have not tried hyperbaric oxygen therapy in the patients who have already had core decompression, because हम एक लार्जेस्ट स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम बायस नहीं चाहते किसी भी तरह का। तो अगर हम कोर किए हुए पेशेंट को ऑलरेडी ऑक्सीजन थेरेपी के लिए लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, तो हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसिडर करना कि पेशेंट कोर कर चुका है ऑलरेडी, पेशेंट 6 वीक्स ऑलरेडी नॉन वेट बेयरिंग कर चुका है। अब उन केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी देने का कितना फायदा होगा ये अभी तक पता ही नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट देयर इज नो लिटरेचर विच सपोर्ट्स कि आप एक मोडालिटी करके दूसरे मोडालिटी को भी ट्राई करें, उससे आउटकम्स बेटर हो जाएंगे, ऐसा कोई भी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देयर इज नो सच लिटरेचर। दैट इज व्हाई वी हैव नॉट ट्राइड बाय फार। अच्छा, एक और तुषार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस इन ए पर्सन वेयर एवीएन इज आइदर ट्रीटेड with conservative therapy in stage 1 में या stage 2A and physical therapy in stage 2AB जहाँ पे core decompression with additive कुछ किया है हमने, उनमें role of maintaining the joint movement with physical therapy, what do you think? आई थिंक मतलब वी आर अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मेंटेनिंग द रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि जो पेशेंट्स एवीएन में प्रोग्रेस करते हैं उनका पेन तो कंप्लेंट होता ही है, लेकिन पेन से ज्यादा मजबूरी में वो लोग आ जाते हैं जिनका रेंज ऑफ मोशन रुक जाता है। तो अगर पेशेंट अपना रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करके रखता है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस और मसल्स को स्ट्रेंथन करके रखता है, तो उससे एक तो पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन कम होने के और उसके ऑपरेशन की मजबूरी तक पहुंचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, कम हो जाता और साथ ही साथ उसके मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती हैं, जिससे उसका हिप थोड़ा सा ऑफलोड होता है। एंड इवन इफ वी वर टू अज्यूम कि ये पेशेंट्स अल्टीमेटली टोटल हिप के लिए लैंड अप करते हैं, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि 5-7 साल से एवीएन चला लिया उन्होंने किसी तरह से, अब उनके मसल्स बिल्कुल हो गए हैं खराब, बिल्कुल ही खराब हो एंड चुका नाउ है। दे आर कमिंग फॉर अ टोटल हिप। एंड व्हेन वी आर डूइंग अ टोटल हिप, तो ऐसे पेशेंट को एक आउटकम डिलीवर करना विदाउट अ गुड मसल कवर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो पेशेंट को That's true. समझना चाहिए कि जो मसल्स हैं आपके साथ ही रहने वाले हैं, चाहे आप कोर करा लें, चाहे आप चाहे ऑक्सीजन थेरेपी करा लें, चाहे आप हिप रिप्लेसमेंट करा लें। हाँ, सो दैट्स अ वेरी गुड टेक होम मैसेज। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बहुत एनकरेज करता हूँ कि एक्सरसाइजेस करके रेंज ऑफ मोशन ऑफ हिप को मेंटेन करके रखें। आमतौर पर बहुत सारे पेशेंट्स का ये दिमाग में ये होता है कि मैं फिजियोथेरेपी कराऊँ, इतने पैसे सर्जरी पे खर्चा कर चुका हूँ, हाइपरबैरिक पे खर्चा कर चुका हूँ, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में तो कुछ मिलता नहीं है उनको। एंड दिस इज ए माइंडसेट जो मुझे लगता है कि इंडियन लोगों का ना चेंज होना जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट success only with a surgery. It is about a team effort where the surgeon, patient, and the physiotherapist all are in one line sync
होना चाहिए कि वो सारे मिलके एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट को कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फिजिकल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जॉइंट वर्किंग। और मेरे टाइम क्या होता है, जो कार्टिलेज का न्यूट्रिशन होता है, मुझे लगता है कि अगर जॉइंट का मूवमेंट अच्छा हो रहा होता है, देयर इज अ 100% सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर जॉइंट कार्टिलेज। जो डेड होना शुरू होता है वो भी मुझे लगता है लुब्रिकेट होने के कारण काफी अच्छा बहुत दिनों तक मेंटेन रहता है। डेफिनेटली। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ, और फिजियोथेरेपिस्ट को भी मुझे लगता है कि दे शुड नॉट लूज द बैटल कि हाँ पेशेंट की सर्जरी हो गई है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, यू आर द राइट पर्सन टू कंटिन्यू एक्सरसाइजेस एज वेल। एंड it should be supervised exercises rather than it is unsupervised in gym activity। बहुत समय लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज तो मैं जिम में जाके अपने आप ही कर लूंगा, या आजकल यूट्यूब वाला एक वो आ गया है जो यूट्यूब में एक्सरसाइजेस देख के कर लेते हैं, एंड दे टेंड टू एंड अप विथ more damage, doing more damage rather than help। अच्छा एक्चुअली ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू ऐड कि मैं इसलिए अपने सारे पेशेंट को ना अब एक्सरसाइज बोलना छोड़ दिया है। आई टेल देम कि ये रिहैब है, ये हाँ रिहेबिलिटेशन है। बिकॉज एक जनरल जो एक अब एक्सरसाइज ना एक मिसनोमर हो गया है हाँ फॉर द पेशेंट्स। बिकॉज जब उनको एक्सरसाइज बोलो ना तो उनको जिम याद आता है बस। हम्म तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि जब हम एक्सरसाइज कह रहे हैं वी आर मीनिंग रिहैब बाय अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट हु कैन सुपरवाइज यू। बिकॉज हर केस अलग अलग होता है, जैसे हम्म, हम हर केस के बारे में अलग अलग बात कर रहे हाँ हैं, इनफैक्ट स्टेज 2A में भी हर पेशेंट अलग अलग होता है। अलग अलग तो होता है इट हाँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक राइट सर्जन चूज करें, आप हम्म एक राइट अप्रोच के साथ में जाए। और हम्म पेशेंट को ये बात समझनी चाहिए कि एवीएन का डायग्नोसिस के बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। शायद हमें बहुत लंबे टाइम तक बात करनी पड़ेगी इस बारे में, जब पेशेंट को ये रियलाइज हो कि जो आपका नेचुरल हिप जॉइंट है वो भगवान ने दिया है, वो 100 साल चलेगा। हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके यू मी एनी सर्जन कैन गिव देम 100% आउटकम ऑन डे वन इट सेल्फ, दे विल बी पेन फ्री। हम्म बट वो जो जॉइंट होगा हम्म, दैट जॉइंट इज नेवर गोइंग टू बी जो या भगवान वो ने दिया जॉइंट। जॉइंट प्रेजर्वेशन एंड बोन प्रेजर्वेशन इज नाउअडेज द प्रिंसिपल इन ऑर्थोपेडिक्स। एंड वो बचाना बहुत जरूरी है बिकॉज वो बचाना बहुत लॉन्ग जरूरी लाइफ है। में हेल्दी लाइफ में एड करता है। बचाना बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस मैनी टाइम क्या होता है कि पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बचाने की कोशिश क्या करनी है, कुछ दिन जितना चलना है चला लें, उसके बाद हिप रिप्लेसमेंट कर लें। मुझे लगता है कि स्टेज 1 2A 2B पेशेंट शुड एक्चुअली थिंक अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ हिप जॉइंट, क्योंकि बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि पहले के यस टाइम पे शायद हमें पता नहीं था इसलिए बचाना मुश्किल था। आज के टाइम पे क्योंकि हमें इसके बारे में डिटेल पता है, हम बचाने की कोशिश कर रहे यस। हैं और बचा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेशेंट शुड गेट एनकरेज। मैं तुषार एक पेशेंट को लेना चाहता हूँ, बहुत देर से पिंग कर रहे हैं, पुनीत कुमार। डेफिनेटली। लेट मी सी एंड इफ ही इज मीनवाइल द अवेलेबल। पेशेंट जॉइन्स, आई विल आल्सो टेल यू अबाउट वन पेशेंट। जैसे वन पेशेंट क्या मतलब, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास आते हैं स्टेज 3 हिप लेके एक साइड पे, और जब हम उनका फ्रेश एमआरआई करवाते हैं तो हमें स्टेज 1 या स्टेज 2A हिप मिलता है ऑन द अदर साइड। तो पेशेंट बोलता है मेरे को तो राइट हिप में स्टेज 3 डिजीज है, मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए। बट हम उस पेशेंट को ये समझाते हैं आप स्टेज 3 वाले हिप के बारे में अभी ना सोचें, क्योंकि वो आपका ऑलमोस्ट 4 पे पहुंच गया है। ऑलमोस्ट गया हुआ है लेकिन हाँ। जो आपका स्टेज 1 और 2 में है, हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। वो जो पेशेंट सबसेट है उनको ये समझाना, उनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप अपना दूसरे हिप को पहले बचाएं और फिर इस हिप के बारे में सोचें, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड कि जो हिप बच सकता है पहले उसको बचाना पहले से प्रायोरिटी है, बचा चाहे से आपको बचाना। दूसरे हिप में ज्यादा पेन हो तो भी। नहीं, दैट्स अ ट्रू ट्रू थिंग। आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जिसमें पेन ज्यादा हो रहा है पहले उसे ही कर दे, ठीक है, और जो हमारा ऐसा वाला है जिसमें मुझे पेन पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि एवियन के पेशेंट्स को बहुत समय पेन हो ही नहीं रहा होता है, इट इज ए डेफिनेटली। इंसिडेंटल फाइंडिंग मेनी टाइम। यस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी एक पेशेंट को मैंने देखा था, बहुत पहले की बात है, जिसमें उसको नी पेन था। अब अनफॉर्चुनेटली नी पेन इतना सिग्निफिकेंट था कि हर एक तरह से नी वाज इन्फ्लेम्ड, नी वाज नॉट ही वाज नॉट एबल टू मूव द नी जॉइंट, ठीक है, एंड हिप रेंज ऑफ मोशन वाज कंप्लीटली ओके, देयर वाज नो क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ इवन एवीएन। एंड उसको रिमेटोलॉजिस्ट के पास मैंने ये सोच के भेजा था कि गेटिंग ए डायग्नोसिस डन फॉर मतलब जॉइंट पेन आर्थराइटिस के लिए, एंड ऑन sacroiliac joint screening it was found to be avian in hip। सो इस तरह
की चीजें भी होती है कि इवन रेंज ऑफ मोशन इज इंटैक्ट एंड यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम नी पेन। मेनी टाइम क्या होता है कि नी का एमआरआई करते हैं, उसमें कार्टिलेज डिफेक्ट भी दिखने लग जाता है। सिमिलर वेज जैसे कि स्लिप डिस्क दिखता है, वैसे ही कार्टिलेज डैमेज दिखता है एंड यू आर एक्चुअली फोकस्ड ऑन द नी। यस तो नी का पेन लेके बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो सफर कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो हिप से आ सकता है एंड इट इज देयर कंसर्न कि नी 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 और पता चलता है कि हिप में है। तो अगेन ट्रीटिंग ए पेनफुल जॉइंट इज नॉट द मेन थिंग, इट इज कौन से स्टेज पे हिप का एवीएन है उसे ट्रीट करना सबसे ज़रूरी है। और एवीएन जैसी चीज़ पे मुझे लगता है कि देयर इज कम्प्लीटली समझने की चीज़ है पेशेंट को कि अगर कोई एरिया पेन कर रहा है उसे सबसे पहले ट्रीट करें, रादर जो मतलब स्टेज वन में है या टू ए में है उनको सेव करें। आई थिंक पुनीत इज विद अस। पुनीत, क्या सवाल है आपका, पूछो। 1 सेकंड सर। सर मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है पुनीत, बताओ। सर माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट गुड, तो कुछ मैं नहीं, थोड़ा हिंदी हिंदी में में बात बात, करूंगा। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बात सर करते मेरे को एवियन था और मेरे को ये हाँ। पिछले साल पता चला था, ठीक है। हैं। हाँ मेरे को ये अप्रैल या मई से सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, बट पता नहीं था मेरे को एवियन है। तो हाँ ये क्या कहते हैं, मेरे को अगस्त में जाके डिक्लेयर हुआ था कि मेरे को एवियन है, और जब हाँ तक आ गए थे सेकंड स्टेज बी, वो बी हाँ आता है ना सेकंड स्टेज का हाँ बी, हाँ वो आ गया स्टेज था। टू बी। मैंने इंद्रप्रस्थ अपोलो है ना, ये सरिता हाँ विहार वाले रोड में दिल्ली में, हाँ तो हाँ यहाँ से एमआरआई में क्लियर हुआ था। यहाँ हाँ पे डॉक्टर अग्रवाल है, उन्होंने क्लियर करा था कि आपको एबीएन है। हाँ तो फिर सर उन्होंने कहा था सर्जरी होगी। डीकम्प्रेस क्या होता है, वो डीकम्प्रेस बोन हाँ मैरो, डिकम्प्रेशन, हाँ डिकम्प्रेशन हाँ डीकम्प्रेशन उन्होंने करा था और बोन मैरो करा था प्लस में। तो उसके हाँ बाद भी ना, जब ये करने के बाद उन्होंने कहा था कि अब हम 6 महीने बाद आपको एक एमआरआई करके दिखेंगे छोटा सा। तो फिर हाँ एमआरआई करा, एमआरआई में फिर वो ग्रेड 2 और बी आया था। तो हाँ उन्होंने कहा था चलो ये आगे तो नहीं बढ़ा, और जो बोन मैरो कराया तो उस हिसाब से बोन बनी नहीं, जहाँ बननी थी वहां तो बनी नहीं, कहीं और बन गई। तो आपका हम्म ना अब हिप रिप्लेस होगा। और सर अब आप हम्म। बताइए, मैं 21 साल की उम्र में कैसे हिप रिप्लेस करा लूं? अच्छा पुनीत, मैं तुम्हारा सवाल ले लिया है। मैं तुम्हें अ, समझाना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में कि एवियन जो है, अगर स्टेज टू बी में तुम्हारा डायग्नोसिस हुआ है, हम उसमें स्टेज टू बी में कोर डिकम्प्रेशन करते हैं। कोर डिकम्प्रेशन करने के बाद मेरे को एक और सवाल का जवाब दो कि तुम्हें बेड रेस्ट कितना दिया था। सर बेड रेस्ट, अभी तक बेड रेस्ट पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। नहीं, बेड रेस्ट का मतलब है कि मैंने बिस्तर से उतरा भी नहीं हूँ, ऐसा कितने दिन था तुम्हारा? सर ऐसा मेरे ऑपरेशन से पहले से चालू हो गया था, और ऑपरेशन से लेके फरवरी तक, सितंबर में ऑपरेशन हुआ था 2 या 3 तारीख को, और उससे लेके मैं फरवरी तक फिर मैं बेड पे ही रहा था। मार्च से मैंने ओके। थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा बहुत चल, उसने चलाया था हाथ पकड़ के, वरना मैं बिल्कुल नहीं चलता था। मतलब कि सुसु पोटे भी पेरेंट्स मदर ही करवाते थे, ऐसा था। अच्छा, ठीक है। एनीवेज दिस इज राइट, तुमने जो किया है एकदम सही किया है मुझे लगता है। अगेन एमआरआई पे मुझे लगता है डॉक्टर तुषार भी इस पे सहमत होंगे कि एमआरआई पे आपको एवियन की जो डिजीज है उसका प्रोग्रेशन दिखेगा ही दिखेगा। इवन हो सकता है रिग्रेशन दिखने में, मतलब वापस ठीक होना दिखने में 2 साल से ज्यादा का टाइम लग जाए। ठीक है, तो जी एमआरआई सर। डायग्नोसिस के लिए, पहले डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली अच्छा है, बट एमआरआई में ये बताना कि आपका बोन जो है वो अच्छा हो गया है, मुझे लगता है 2 साल तक का टाइम लग सकता है उसमें। तुषार क्या जी कहते हो सर। इसके बारे में? डेफिनेटली सर। मतलब मुझे कुछ चीजें, कुछ मेरे कमेंट्स हैं इनके क्वेश्चन के बारे में, तो मैं शुरू से शुरू करूंगा कि पहली चीज तो ये है कि जो डॉक्टर आपका एवियन का डायग्नोसिस बना दे और आपको ये बात समझा दे कि आपका हिप प्रिजर्व किया जा सकता है, हम्म पहले तो यू शुड बी थैंकफुल टू हुएवर डॉक्टर दैट इज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम्म हम डायरेक्टली हिप रिप्लेसमेंट पे जंप ना करें, एक हम्म नेटिव बोन को बचाने की कोशिश करें, जैसा ये हमारे साथ बहुत देर से सुन भी रहे होंगे। हम्म दूसरी चीज ये है कि फॉलो अप के लिए जो आपने पॉइंट से रेज किया वो बिल्कुल सही बात है कि फॉलो अप के लिए एमआरआई यही बताता है कि डिजीज आगे तो नहीं बढ़ा। हम्म रिग्रेशन प्रोबेबली मुझे लगता है कि हमारे पास में अराउंड हर मोडालिटी का मोर देन 5 इयर्स का फॉलो अप हर मोडालिटी का है हमारे पास। हम्म और मेरे को लगता है शायद ही 20% सबसेट ऐसा होगा हमारे पास हम्म जिसके एक्चुअली में एमआरआई में हम्म ग्रोथ के चेंजेस दिखते हैं, हम्म सिग्निफिकेंट ग्रोथ के। मतलब माइनर हेयर एंड देयर कैन बी सब्जेक्टिविटी। मोस्टली पेशेंट्स में ऐसा होता है, जो बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज कर दिया अपने क्वेश्चन के द्वारा, कि डिजीज एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो हम्म एवियन की केसेस में क्योर होना शायद इसी को बोला जाता है कि डिजीज आगे नहीं बढ़ रहा। तो हम्म ये
बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में ऐसा ही देखा जाता है कि डिजीज फर्दर आगे नहीं बढ़ा है। क्लिनिकली पेशेंट ठीक है, पेशेंट क्लिनिकली बेटर महसूस कर रहा है, अपनी बाकी एक्टिविटीज को कर पा रहा है। सम पेन हेयर एंड देयर मे बी देयर, बट कोई सिग्निफिकेंट पेन पेशेंट को नहीं रहती। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली। हाँ और मुझे ऐसे भी। पेशेंट्स को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ अगेन एक हाँ होलिस्टिक अप्रोच लेके सुपरवाइज एक्सरसाइजेस करते हुए अपने हम्म, नॉर्मल शेड्यूल की तरफ लौटने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। सो यही मेरा पुनीत तुम्हारे लिए एडवाइस है कि मुझे लगता है कि एमआरआई राइट डायग्नोसिस नहीं है। अगर तुम्हारे सिम्टम्स नहीं है, अगर तुम्हें सिम्टम अभी पेन के नहीं है और तुम्हारा हिप का मूवमेंट बेटर है, तुम्हें लिंपिंग नहीं है, ठीक है, और एक्सरे वाइज कोलैप्स बढ़ा नहीं है या एमआरआई वाइज कोलैप्स बढ़ा नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हें वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत रश सिचुएशन की जरूरत है, क्योंकि अगर कोर डिकम्प्रेशन अच्छे से हुई है सर्जरी और उसके बाद तुमने अप्रोप्रिएट बेड रेस्ट भी लिया है और मेडिसिन भी ली हैं एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है। अभी तुम्हें पेन कितना है ये बताओ। सर पेन जैसे कि रात को सोता हूँ ना तो होती है, और जैसे कि सोता हूँ तो होती है, या जैसे कि साइकिल पे पैर उचका के बैठते हैं ना हाँ और पेंडल मारते हैं तो हाँ। थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम आती है। कुछ मूवमेंट्स है जो तुम्हें मेरी ब्लॉक है। चलने में लचक लगती है तुम्हें। चाल तो बिल्कुल परफेक्ट है, चाल बिल्कुल अच्छा, परफेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता स्टेयर्स है अगर बिल्कुल परफेक्ट चढ़ता हूँ। हाँ हाँ, तो अगर तुम्हारी चाल बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी मूवमेंट ठीक है, और तुम साइकिल भी चला पा रहे हो और चल भी पा रहे हो, सीढ़ी चढ़ पा रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी उसका टाइम आया। तो यू कैन टेक बाइक भी योर टाइम। ठीक चला है, लेता हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ perfect। तो। तो अपनी बट सर एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज रेगुलर तो कर मेंटेन। रहा हूँ सर, बट जैसे कि मैं एम्स में भी दिखा रहा हूँ, अपोलो के अलावा एम्स में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, एम्स के सीनियर सर्जन ने मेरा एक्सरा देखा तो एक्सरा देख के कह रहा है ये तो पूरा खराब हो गया है, ये हिप रिप्लेस होगा। अब ये कब होगा, कब कराना है आप देख लो, जब आपको प्रॉब्लम होगी, दर्द होगी तो आके करा लेना, कर देंगे। सर मैं हिप रिप्लेस नहीं कराना चाहता हूँ, मेरे को आप ऐसे ही ठीक कर दो ना। अच्छा, मैं तुम्हें पुनीत तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा डर जो है ना हिप रिप्लेसमेंट का भी हटा देता हूँ। ठीक है, अगर हिप रिप्लेसमेंट करना है तो कब करते हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। नंबर वन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ लो कि जिसमें तुम्हें इतना पेन हो रहा है हिप में कि तुम्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, तुम चलने फिरने के लिए पेन किलर डेली बेसिस पे खाने लग गए हो, या हफ्ते में 2 या 3 दिन से ज्यादा पेन किलर, पेन की गोली खाने की जरूरत पड़ती है तुम्हें काम करने के लिए, या तुम्हारे चलने के स्टाइल में इतना ज्यादा लिम्प आ गया है कि दूर से लोग देखने में कह रहे हैं कि लिम्प आ रहा है, क्योंकि लिम्प अगर आता है तो आपकी स्पाइन में भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये तीन चीजें अगर तुम्हें हो रही हैं कि तुम्हारा पेन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और चलना फिरना दुभर हो रहा है, नंबर टू तुम्हें पेन के साथ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है, या लिम्प दूर से दिखाई दे रहा है, तो ये इंडिकेशंस है तुम्हें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी चाहिए। दूसरा, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी 21 साल क्या, मुझे लगता है कि इवन आज के दिन पे 14-15 साल जब तक बोन मैच्योर्ड हो जाती है उसके बाद से ही हिप रिप्लेसमेंट की जा सकती है। और सही से की गई हिप रिप्लेसमेंट 30, 40, 50 साल तक इंटैक्ट रहती है। समझ रहे हो? 30, 40, 50 साल तक अगर हिप रिप्लेसमेंट इंटैक्ट रहे, जिसमें तुम सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, नीचे बैठने की एक्टिविटीज भी कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग, अपने डे टू डे लाइफ की सारी एक्टिविटीज कर सकते हो पेन फ्री, तो मुझे नहीं लगता कि यंग लोगों को भी इस चीज से अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है, मैंने तुम्हें इंडिकेशन बता दिया है कि कब तुम्हें जरूरत है, कब तुम्हें इसको करना है, और ये 100% सक्सेसफुल सर्जरी है, और फर्स्ट टाइम अगर अच्छे से सर्जरी की है तो सालों साल चलेगा हिप। ठीक है, रीडू सर्जरी की जब जरूरत पड़ेगी तब की तब सोचेंगे 30, 40 साल, 50 साल बाद। मगर अगर तुम पेन फ्री हो, पेन में हो तो सर्जरी कराओ, पेन किलर्स खा रहे हो तो सर्जरी कराओ, अगर चलने में लचक बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है तो सर्जरी कराओ, अदरवाइज सर्जरी के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, इनमें से तो कुछ नहीं हो रहा सर अभी। हाँ खैर तो मैं फिर सारी रुक जाओ। चीजें कर पा रहा हूँ, बस रनिंग वगैरह भगना वगैरह डॉक्टर ने मना करा, भगियो मत, हाँ आलती पालती लगा तो के फर्श पे मत बैठियो, इंडियन स्टाइल में फ्रेश पॉटी करने मत जाइयो। हाँ ये चीजों पे उसने अभी मेरे बैन करा है। ठीक है, और जो तो चीज कर आई थिंक पा रहा है वही कर, जो चीज करने में प्रॉब्लम हो रही है उसको मत कर। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो तुम्हें एडवाइस दी है वो राइट एडवाइस दी है। आई डोंट थिंक सो कि इस पे तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत है, जस्ट रिलैक्स। और ऐसा कुछ अगर पेनफुल वाला मैंने जो तुम्हें 3 कंडीशन बता दी है, इसमें सर्जरी करा सकते हो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर एक्सरसाइज सर कंटिन्यू जो कर रहा हूँ वही करता हाँ रहो, एक्सरसाइज ना रोकू, हिप, कभी हाँ कोई हिप ऐसा की टाइम आएगा जब एक्सरसाइज ना करनी पड़े। एक्सरसाइज तो करनी चाहिए।
अच्छी 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 हैबिट है। नहीं, मैं थोड़ा जिम वगैरह जाना चाहता हूँ ना, अभी तो देखो घर में मुझे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर जिम लगता में है जाके कि करूंगा। हाँ, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अपने घर के पास ढूंढ लो, जिससे कि तुम जिसके साथ एक्सरसाइजेस रेगुलर रूटीनली, कम से कम इनिशियल कुछ दिन रेगुलर, उसके बाद हफ्ते में या महीने में एक दो बार करके तुम उनके साथ रेगुलर करो, जिससे जॉइंट मूवमेंट बनी रहे और वो तुम्हें गाइड करते रहे कौन सी एक्सरसाइज से तुम्हें फायदा होगा और कौन से नुकसान होगा। स्क्वाटिंग क्रॉस लेग मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, स्क्वाटिंग क्रॉस लेग इज नॉट गुड। ठीक है। थैंक यू सर, ठीक आपने है। मेरे को ज्वाइन करा, अपना टाइम दिया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक सो तुम हाँ लॉग आउट कर लो और सुन सकते हो, आगे वाला यू। सेशन भी सुन सकते हो। ठीक है। सो डॉक्टर तुषार, आई थिंक दिस वाज ए डेफिनेट माइंड ओपनर फॉर मेनी ऑफ द पेशेंट्स। डेफिनेटली सर, ठीक है, आई बिफोर थिंक। बिफोर गोइंग अहेड, एक मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस दीज डेज एंड यू नो दे आस्क अस अबाउट, सर मैं ये फिजिकल थेरेपी करा के, नॉट हाँ फिजियोथेरेपी, हाँ एक अलग टाइप की, ये पेशेंट लैंग्वेज है, हाँ एक फिजिकल थेरेपी होगी जिसमें मुझे शॉक वेव मिलेगा हाँ। या मेरे को रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलेगी हम्म और मेरा एवियन की नसें खोल दी जाएंगी जिससे मेरी एवियन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम्म। तो ये कौन सी मोडालिटी है और इसके बारे में क्या ओपिनियन है सर आपका, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये नहीं है। देखो तुषार, लॉट ऑफ क्लेम्स, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्लेम्स और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्लेम कर रहे हैं आज के दिन पे। अम, मुझे ट्रूली सेइंग मैं ये बोलूंगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है। क्योंकि एवीएन पे अभी रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ठीक है। जैसे हम सर्जन हैं, हम सर्जरी के जो एडवोकेसी कर रहे हैं, दोज आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग राइट नाउ, हम लोग कर रहे हैं। और उनमें भी क्या होता है कि मेनी टाइम मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अगर सर्जरी का एक्सपीरियंस मैं मानूं तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये था कि मेरे कॉलेज टाइम में फील्ड वाली सर्जरी मानी जाती थी, टू ए पॉइंट कि मेरे ऐसे कुछ पेशेंट्स थे जो कि मेरे नोन टू में थे, जिनको मुझे सेव करना था, और मैंने उन पे इम्प्रोवाइज करते करते अच्छे सर्जरीज निकाली हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम जीरो कि जीरो आउटकम से लेके 100% सेविंग ऑफ ए हिप जॉइंट, मुझे लगता है इट कम्स विद अ लॉट ऑफ, यू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड देन यू डिसाइड। मुझे लगता है अभी बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज चल रही है, मे बी 5 to 10 years डाउन द लाइन लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर्ड अप। लोगों के इसके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी थेरेपीज देखी है जिनमें कि स्टेम सेल्स डायरेक्टली इंजेक्ट जॉइंट के अंदर कर दिए जा रहे हैं, या प्रिजर्वेशन के नाम पे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज कर रही है जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर मैं एग्जैक्टली, बोलूँ कि दैट इज द हाँ पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाँ रेज फॉर एवरीवन, हाँ कि आप कोई भी मोडालिटी चूज करें तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या अपने फिजिशियन से फ्री रहें ये डिस्कस करने में हाँ। कि आप जो मोडालिटी मुझे ऑफर कर रहे हैं इसका साइंटिफिक बेसिस, इस पे स्टडीज हम्म हुई हैं या नहीं हुई। बिकॉज हम्म अगर कोई ऐसी स्टडी आपको करी जा रही है जिसपे स्टडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं लिटरेचर में, तो हम्म ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि हम्म ये स्टडी सिर्फ कंसेंट बेस्ड स्टडीज होती हम्म है। हम्म और जो स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आपको वो ट्रीटमेंट मिल रहा है, देन प्रोबेबली you हम्म have to and you should respect that treatment and take it with a lot of positivity कि ये ट्रीटमेंट मेरे लिए अच्छा करे। तो एवरी पेशेंट शुड फील फ्री टू टॉक टू देयर सर्जन कि हम्म इस ट्रीटमेंट मोडालिटी का साइंटिफिक बेसिस है या नहीं है, बिकॉज आज के डेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हम्म पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम्म प्रोबेबली ये सारे पेशेंट्स अपने लाइफ में एक स्टेज पे अननोइंगली हाई डोज स्टेरॉइड लेके भी आते हैं हम्म जब उनको पता ही नहीं था कि उनको एक हाई डोज स्टेरॉइड दिया जा रहा है, because उस टाइम पे पेशेंट एजुकेशन was not that prevalent and nowadays everyone is very well educated, everyone has access to Google। सबको ये पेशेंट को एजुकेट या तो खुद होना पड़ेगा या फिर करवाना पड़ेगा अगर ऑटोमेटिकली एजुकेशन नहीं मिल रही है, एंड इट विल बी वेरी इंपेरेटिव फॉर ऑल ऑफ देम हाँ एज फार एज देयर ट्रीटमेंट इज कंसर्न। हाँ। अच्छा तुषार, एक और सवाल मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। तुमने ये फिजियो वाला पूछा है, शॉक वेव थेरेपी, तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि एक और फिजिशियन थेरेपी एक और चल रही है जो कि बहुत ही फेमस है, इवन विथ एक कॉकटेल रेजिमेन। आई थिंक उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? आई थिंक डॉक्टर मुखर्जी हैज मेड इट फेमस अबाउट मुखर्जी रेजिमेन ऑफ DMRDs एंड ऑफ ऑस्टियोफॉस एंड अ लॉट ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड। उसमें से एक स्टेरॉइड भी है ट्रीटमेंट में। So, what is your take on those treatments?
For me, for like I think across the orthopedic community, हम्म बहुत सिंपल सा फंडा है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि अगर साइंटिफिक बेसिस है, हम्म अगर स्टडीज हुई हुई है, देन वी वांट, मतलब हम तो चाहते हैं कि नई मोडालिटीज आए हम्म या नए ड्रग कॉम्बिनेशन ऐसे बने जिससे ये एवियन की प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के भी सॉल्व किया जाए। हाँ हम तो चाहते हैं ये। हम्म लेकिन अगर कोई ऐसे कॉकटेल या कोई ट्रीटमेंट बनाता है, देन हम्म इट वुड बी वर्थ वॉचिंग कि उनकी स्टडीज के आउटकम्स कैसे होते हैं। हम्म बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एंड आई हम्म थिंक यू वुड ऑल्सो अग्री ऑन दैट, कि इस पे कोई स्टडीज अवेलेबल नहीं है। तो यस डेफिनेटली यस अगर स्टडी आती है, एक मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो एक पेशेंट की नॉलेज के लिए बताता हूँ मैं, कि हम एविडेंस को जो ग्रेड करते हैं ना, कि लिटरेचर का मतलब कि आज तक जो भी स्टडी हुई है वर्ल्ड वाइड, उसमें जो उससे जो एविडेंस बनता है, जो प्रूफ बनता है किसी ट्रीटमेंट को यूज करने का, उस प्रूफ के लेवल्स होते हैं। उस प्रूफ में सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है ना, वो होता है इंडिविजुअल्स ओपिनियन। हाँ इंडिविजुअल तो मुझे ओपिनियन एंड लगता है कि केस एक्सपीरियंस मेरी, आपकी या एक थर्ड पर्सन की इंडिविजुअल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो लिटरेचर बेस्ड ना हो, बैक्ड बाय लिटरेचर ना हो, बैक्ड बाय प्रूफ ना हो, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर स्टडीज आती हैं, देन आई फील दैट आई वुड हैप्पीली वांट की स्टडी आए और ये एवियन की प्रॉब्लम से लोगों को छुटकारा मिले। बिकॉज ये हमारा अल्टीमेट मोटिव है कि किसी को एवियन होए ना, और अगर एवियन हो जाए तो वो बच जाए किसी तरह से उसका जॉइंट। डेफिनेटली यस। अच्छा आई थिंक एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन रह गया, दैट इज इफ देयर इज ए एक्टिव कोलैप्स, कोई कोलैप्स हो गया है एंड इट इज सेक्टोरियल कोलैप्स ऑफ फीमर हेड का, सेक्टोरियल कोलैप्स हुआ है, अभी भी आर्थराइटिस स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स स्टेज 3 हमारा आ गया है। अब स्टेज 3 में इज देयर एनी रोल ऑफ प्रिजर्वेशन सर्जरीज, ठीक है, अदर देन हिप रिप्लेसमेंट? सर अगेन आई वुड टॉक ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर कि ऑस्टियोटोमी डिफाइंड है, ऐसी करेक्टिव ऑस्टियोटोमी डिफाइंड है कि हम अगर मान लेते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ कोलैप्स है वो वेट बेयरिंग एरिया में आ रहा है, तो हम उसको हड्डी को काट के थोड़ा सा घुमा के वहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन वो एरिया जो कोलैप्स हो चुका है वो आपका वेट बेयरिंग एरिया से नॉन वेट बेयरिंग नॉन एरिया में वेट चला बेयरिंग गया। में चला जाएगा। बट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये जो सर्जरीज जब हम ऑफर करते हैं, तो आई थिंक द पेशेंट शुड टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि ऐसी थेरेपीज का सक्सेस रेट एग्जिस्ट करता है, बट वो सक्सेस रेट स्टेज 2 की थेरेपी मोडालिटीज से सिग्निफिकेंटली कम है। तो पेशेंट शुड टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि क्या मुझे इतनी ज्यादा जरूरत है कि मैं इस हिप को बचाने की कोशिश करूं, या फिर मैं एक हिप रिप्लेसमेंट करवा के अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लूं और अपना टेंशन फ्री लाइफ जीऊं। तो आई थिंक ऐसे केसेस में हम लोग वी लीव इट ऑन द पेशेंट, वी गिव देम द डेटा कि हाँ इतने परसेंट केसेस में आपका हिप बच सकता है इन द बेस्ट ऑफ द हैंड, तो हम ट्राई करें या नहीं करें। ये हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ, बिकॉज वी रन बाय अ मेन्यू अप्रोच। द पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड दैट दीज आर योर ऑप्शंस, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, एंड दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। ये ट्रीटमेंट ऐसा टेस्ट करेगा और ये ट्रीटमेंट वैसा टेस्ट करेगा। वैसा लेट यस द तो पेशेंट चूज, बिकॉज द पेशेंट इज द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड डेस्टिनी। हाँ अल्टीमेटली द पेशेंट शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने वो ट्रीटमेंट ट्राई नहीं किया या मैंने वो ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया। ट्रीटमेंट ट्राई नहीं किया। हाँ डेफिनेटली यस। Yes. रिगार्डिंग ऑस्टेटोमी मेरा टेक ये है कि स्टेज 3 सेक्टोरियल कोलैप्स, डेफिनेटली यस वी कैन ऑफर दिस ट्रीटमेंट कि हम उसका रोटेशनल ऑस्टेटोमी वेरस वेल्गस ऑस्टेटोमी टू चेंज द वेट बेयरिंग जोन एरिया, जो कोलैप्स है उसको नॉन वेट बेयरिंग एरिया में कन्वर्ट कर दें, एंड दैट्स ए सक्सेसफुल सर्जरी डन इनिशियली फॉर अदर रीजंस। पहले हम लोग करते थे, मुझे लगता है कॉलेज में एकेडमिक पर्पज से बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था, और अफोर्डेबिलिटी का जहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट अफोर्ड नहीं कर पाते थे पेशेंट, उनमें हम लोग ये करते थे, एंड दोज आर सक्सेसफुल केसेस एज वेल। बट डेफिनेटली यस, इफ यू कंपेयर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो सारी चीजें होने वाली है टू ए पॉइंट की ऑस्टियोटोमी में विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यू विल हैव सम ऑफ पेन, डेफिनेटली यू विल प्रोटेक्ट योर ओन जॉइंट, उतना रहेगा, एंड पेशेंट हैज टू नो दिस कि उन्होंने क्या साइन किया है, किस सर्जरी के लिए वो साइन कर रहे हैं, और उन्हें पता होना चाहिए उसकी लिमिटेशंस एंड प्रोज एंड कॉन्स भी। सो डेफिनेटली यस, इन स्टेज 3 एज वेल वी हैव सर्जरीज व्हिच आर actually working well for patients, and stage 3 matured complete collapse, full collapse wala head and
स्टेज 4 आर हिप रिप्लेसमेंट केसेस, जहाँ पे कि मुझे लगता है पेशेंट्स को इस डर से निकल जाना चाहिए कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है. व्हाट इज योर टेक इन अर्ली हिप रिप्लेसमेंट इन यंग पेशेंट्स जिनका एज 14, 15, 16, 18, 20, 25 इसमें है? हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज उनको कितनी हेल्पफुल है और कितना लॉन्ग लास्ट करने वाली है? सर मुझे लगता है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज अ सक्सेसफुल सर्जरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज. अगर वो एक ठीक कैंडिडेट को ऑफर करी जा रही है, एक ऐसे पेशेंट को ऑफर करी जा रही है जिसको जेन्युइनली हिप रिप्लेसमेंट से ही आराम मिलेगा, और एक ऐसे पेशेंट को ऑफर करी जा रही है जिसको ना ही सिर्फ की स्टेज 4 या स्टेज 3 लेट आर्थराइटिस हो चुका है अभी, और साथ ही साथ पेशेंट की फंक्शनल डिमांड्स भी ऐसी हैं, बिकॉज ये हमारा बहुत क्रूशियल पीरियड होता है लाइफ का. अगर हमने वो 18 to 30 ईयर्स वाला अपना पीरियड लूज कर दिया, देन प्रोबेबली वी आर गुड फॉर नथिंग थ्रू आउट आवर लाइफ. तो उस पीरियड में मुझे लगता है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको 18 साल पे हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत थी और उसने 10-12 साल व्हीलचेयर पे निकाल दिए या बेड रिडन होके निकाल दिए, उसकी लाइफ की जो दुर्गति होती है, आई थिंक इट इज फार बेटर कि उसको 18 साल पे किसी ने अगर हिप रिप्लेसमेंट कर दिया होता, दैट पेशेंट वुड हैव बिकम अ मैन टुडे एंड वुड हैव टेकन अप अ जॉब, और वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रहा होता. तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स को समझना कि हिप रिप्लेसमेंट एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है, और वो ठीक इंडिकेशंस में करी जा रही है, देन आई डोंट थिंक सो एज शुड मैटर. डेफिनेटली यस, मेरा भी एक सिमिलर ही है इसमें कि जो लोग ऐसे हैं जिनको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है और पेनफुल इतना हिप है कि मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग पेशेंट बेड रिडन है या अपने कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं, घरों में पड़े हुए हैं, पेन किलर मेडिसिन पे डिपेंडेंट है. बहुत समय बहुत सारा पैसा वो लोग वेस्ट कर रहे होते हैं उल्टे पुल्टे ट्रीटमेंट्स पे कि शायद कोई बचा ले हिप, और उसके चक्कर में वो अपना वाइटल ईयर्स of 20s, 30s and 40s को वेस्ट कर देते हैं. I've seen a lot of patient going into depression about this कि डिप्रेशन में ही चले गए, उन्होंने अपनी लाइफ ही एंड कर दी बिकॉज ऑफ एवियन एंड एवियन के लेट स्टेजेस में. आई थिंक इट इज़ नॉट ए एरिया जहाँ पे कि आपको इवन सोचना भी चाहिए. आपको 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सोचने की भी जरूरत नहीं. मेरा जो सबसे छोटा पेशेंट मैंने जो ऑपरेट किया है फुल मेच्योरिटी पे 14 ईयर्स पे किया है, जो कि एकदम बेड रिडन था लास्ट 2 ईयर्स से, वो भागने दौड़ने लगा, सारे काम कर रहा है. ठीक है, तो पॉइंट मैं आज इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि अच्छी सर्जरी हो और पेशेंट सारी चीज़ें कर पाए और अपनी लाइफ को लीड सके, कर सके. बहुत समय एवियन के पेशेंट्स आते हैं, दे आर एक्चुअली इतने पेन में होते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे होते. इवन अपनी मतलब बहुत सारे यंग लोग हैं जो शादी भी नहीं कर रहे हैं, इसी चक्कर में अटके हुए हैं. उनका ये डर होता है कि एवियन की मतलब हिप रिप्लेसमेंट में एक स्कार रह जाएगा, वो स्कार शायद शादी के बाद दिखेगा. मुझे लगता है स्कार तो बॉडी में हो सकते हैं, बट आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से फ्री मोबाइल होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. इवन दे कैन एंजॉय देयर मैरिड लाइफ एज वेल आफ्टर सर्जरी. दे कैन बेयर किड्स एज वेल. फीमेल्स बच्चे भी डिलीवर कर सकती है. तो ऐसा एवियन के बाद हिप रिप्लेसमेंट के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में डरने की ज़रूरत है. मुझे लगता है सारे चीज़ें की जा सकती है, तो लोगों को डरना नहीं चाहिए. इफ़ दे वांट कि हिप रिप्लेसमेंट करना है, देयर इज नो एज, दे कैन गेट सर्जरी एट एनी एज. ठीक है. I think Tushar, we have covered a lot of things and we have crossed 1 hour and more. I think we should Yes. end this session of Avian. It was Yeah. an interesting session, and I Yes, sir, think definitely. I'm going to post it back as well. Those who have missed it, they can see as well कि Avian Definitely. के बारे में full detail है. I think it was a wonderful discussion, and you've been Yes. one of the proactive person discussing about it. I think it is going to be a very helpful video for patients as well in their future Definitely. decision making है. एंड लास्टली मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जिसको भी कोई एवियन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन go to Dr. Tushar in AIIMS Rishikesh. His orthosphere handle is there. You can ask me as well. I'm there to help you out, guys, and we will definitely win over avian. Avian is not a health issue which you should be even concerned about. Yes, think right, talk to your doctor, talk to your surgeon, and take the right decision. Thanks a lot. Absolutely. Thank you, sir. Thanks. Bye.